Please repeat. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. Okay, very nice to see all the children here. So you remember last time what we learned? What did we learn last time? What did we learn? Four things. What are those four things? You hear about Krishna, get attracted to Krishna, think about Krishna, and then you see Krishna. Then you see Krishna, right, Adya? Is he saying correctly? Arna, is he saying correctly? So today we're going to learn new thing. So it is so nice of you. You all remember what we spoke month ago. देखिए 1 महीना पहले इन बच्चों को हमने बताया था नीतीश प्रभु के घर जो प्रोग्राम था और इनको सबको याद है. They all remember that. So today I will tell you another thing and then we will test that out. Okay? But before that, let's recite this verse together and then today we'll do the English version because children, so they have to repeat in English with us. Right? So we go to, so please take chapter 5, Canto 5, chapter 5, verse number 27. Everyone get on your phones. What are their names? ये बच्चे इनका क्या नाम है? जिन्होंने हुडी पहनी हुई है. अर्जुन बेटा you come here. वो आपकी बहन है? Is your sister? Arjun, you stay here. Sarah, you come here. Come here. Sit here. Are you upset? Do you need water or drink something? Are you hungry? You are Arjun. Your name is Arjun. Yeah, that's a very good name. Okay. Purvi, share your phone with them. Right? Okay. You all look into his phone. Okay. You sit on this side, Arjun, and Sarah, you sit on this side so that you both can. No, you stay there. Purvi, stay there. Let them sit next to you. So that they both can see your phone. Okay, SB 5.5.27 आप गूगल में टाइप करें. SB 5.5.27. Lagan, you got it? Okay, you share with other children. You share with Arna and Navya. Arna and Navya, come forward. You don't have to sit that back. Okay. Adya, you got on your phone as well? So who are you going to share with? You share with Krisha. Krisha, come forward. Come forward. Sit with Adya. Adya, share your phone with her so she can also see. 5.5.27. Kabir, you sit with Adya. Adya can show to Krisha and to you. Lagan, you show it to Arna and Navya. You show it to them. Bede, what is your name? Huh? क्या नाम है? Viraj. Oh, I had a friend whose name was Viraj. Very good. Okay. Everyone ready now with their phones? Yes? Purvi, show it to him. Okay. You are senior, so you need to help them. Make sure they get to see better than you. Okay. Ask Sarah. She can also see. Sarah, you can see better? Okay. Everyone ready? 5.5.27. आज हमने थोड़ा लेट भी शुरू किया, थोड़ा टाइम भी लग रहा, बट दैट्स फाइन. That's fine. Don't feel any pressure or anything.
आज बच्चों को हम एक नई चीज बताने वाले हैं एंड दे ऑल विल रिमेंबर नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम। ठीक है, सब रेडी? प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मनो वचो दृक् करणे हितस्य। मनो वचो दृक् करणे हितस्य। साक्षात्कारं मे परिबर्हणं हि। साक्षात्कारं मे परिबर्हणं हि। साक्षात्कारं मे परिबर्हणं हि। साक्षात्कारं मे परिबर्हणं हि। पुंसां विनाये न महाविमोहा। विना पुमान्ये महाविमोहा। कृतांत पाषाण न विमोक्तुमीशे। कृतांत पाषाण न विमोक्तुमीशे। Okay. What about translation? What about translation by Srila Prabhupada? Srila Prabhupada ki? Yeah. Children, Srila Prabhupada ki? Loudly, yes. Adya, you need something? Okay. Please repeat. Everybody, please repeat. Please hear and then you repeat. Mana, mind. Vacha, words. Drik, sight. Karana, of the senses. Ihitasya, of all activities for maintenance of body, society, friendship, and so on. Sakshat Kritam, directly offered, may, of me, Paribarhanam, worship, he, because, Vina, without, Puman, any person, Yen, which, Mahavimohat, from the great illusion, Kritant Pashat, exactly like the stringent rope of Yamaraj. Na, not, Vimoktum, to become free. Ishet, becomes able. Yeah. Okay. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Okay. Purvi, give Sarah the phone. Sarah, beta, you okay? Please repeat. Okay. Please repeat with me. You are a very good girl. Give her the phone. You take the phone, beta. You repeat with me. Okay. Very nice. The true activity of the sense organs, mind, sight, words, and all the knowledge gathering and working senses is to engage fully in my service. Unless his senses are thus engaged,
a living entity cannot think of getting out of the great entanglement of material existence, which is exactly like Yamaraj's stringent rope. Okay. So let's understand the meaning of this verse first. So this verse is being spoken by Bhagwan Rishabdev. And Bhagwan Rishabdev is instructing to his sons. And in that assembly, there are many other rishis, brahmanas are also there. So what he is telling them is that the true activity of all the sense organs, knowledge acquiring senses and working senses, is to engage fully in my service. So Lord is saying you should engage all your senses in my service. Right? Unless we engage our senses in the service of Krishna or the Supreme Personality of Godhead, then Bhagwan Rishabdev is telling is it is very difficult for the living entities to get out of the stringent rope of Yamaraj, जो मृत्यु पाश जो बोलते हैं. Right? So now children, please focus. This is for you. So Bhagwan is saying there are 5 knowledge acquiring. I think छोटे बच्चे आगे आए और जो लंबे बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा पीछे बैठे. बेटे Krishna, you come here. Adya, you also come here. What is the name of this boy? Ryan. Ryan, you come here. आगे आओ बच्चे, छोटे बच्चे आगे आए. You're not okay. Okay, sit here. No, just sit there. Sit there. Okay, please now hear carefully. Kabir, you right? Sara, bete, aap sun rahe ho? Please. So 5 knowledge acquiring senses. So there are 5 knowledge acquiring senses. Okay. So I want you to understand what are those 5 knowledge acquiring senses. So 5 knowledge acquiring senses are, what is the number 1 sense? Is eyes. From eyes we see. You don't need to look at the phone now. Please hear me. Children, please hear me now. We're not looking at the phone. Are they okay? So 5 knowledge acquiring senses. Please remember. 1 is the eyes. From eyes you see. You see from eyes. And when you see something, then you can say, what color is this? Blue. What color is this? Yellow. So from eyes, you can see and you can gain knowledge. You can also discriminate. Okay. By seeing, you can discriminate. If I see you, how does this look? If you can't see, then you cannot tell. So eyes is one of the knowledge acquiring sense. Okay, remember that? Then the second knowledge acquiring sense is our ears. From the ears we hear, now, like you are hearing now. Yes. So you gain knowledge through hearing. You go to school, your teacher tell us whatever she speaks, you hear through ears, and then you understand that, right? So first knowledge acquiring sense is eyes. Second knowledge acquiring sense is ears. Now the third knowledge acquiring sense is smell. Smell. If we give you a flower and we say smell it, how do you say it is nice? Or how do you judge something? You say something smells good, something doesn't smell good. How? By your nose. Yes? So through the nose also, that is a knowledge acquiring sense. So how many senses so far? Oh, come on, focus. How many knowledge senses so far? Kabir, bete, how many? Okay, what are those? Eyes, yes. Nose, yes. And ears. Yes. Everybody agree? So 3 knowledge acquiring senses so far. The 4th knowledge acquiring sense is our tongue. From tongue we speak, but there is another thing we do from the tongue. Taste. Right? Taste something. Sorry, buddy. Taste something. Taste something, right? You by taste you can say this is sweet, or this is sour, or this is salty. So this is the 4th knowledge acquiring sense. Okay, Sarah, bete, you okay? So these are the 4th knowledge acquiring senses. And the 5th one is the touch. Yes, laga? Touch. If something touches you, you can say this is hot,
this is cold, right? Or this is normal. So like this, these are 5 knowledge acquiring senses. Now, please tell me, what are these 5 knowledge acquiring senses? Who will say? Okay, Arjun, you say first. Eyes, ear. Eyes for what? No, when you say eyes for seeing, ears for hearing. Okay, Krisha, do you want to help me? Krisha, you help him. What are touch? Touch is the skin. And Adya, do you want to help him? Smell. And smell that. So these are the 5 senses. Okay, start from here. What are the 5 knowledge acquiring senses? Touch. You touch something, yes, 1, which is skin, which is eyes. You hear something through the ears, and you smell something through the nose, taste something from the tongue. Okay, Navya, now you're Arna. Arna, you tell us, what are those 5 senses? Touch, skin, right? And tongue for tasting. So these are the 5 knowledge acquiring senses. Why they're called what? Knowledge acquiring senses. So these are very important senses. Who wants to tell me what are those 5 knowledge acquiring senses? Okay, one by one, everybody will get a chance. Purvi, you speak. Eyes for seeing, ears for hearing, tongue for tasting, skin for touching, and nose for smelling. Nose for smelling. Very nice. Okay, Adya, what are those 5 senses? Okay, Ryan, you want to go first? Very intelligent. Very intelligent. That's fine. Lagan, you haven't spoken yet. Okay, Lagan, you speak. Everyone here, please. So eyes is for seeing, ears is for hearing, nose is for smelling, tongue is for tasting, and hands is for feeling, touch is for feeling. Or we can say skin. Skin here, everywhere. So, right? So these are our 5 senses. And they are called knowledge acquiring senses. Okay. Who else wants? Adya, do you want to say now? Not yet? Okay, that's fine. Arjun is very good. Very nice. Sara, beta, you want to try? No? Okay. Kabir, you want to try? Okay, come on, speak. Eyes for seeing. Nose for smelling. Hands for touching. Or skin. Try to remember skin. Yeah. Ears for hearing. Tongue for tasting. Very nice. Very nice. Who hasn't had a go? Navya, you want to try? No? Okay, next time. Arjun, you are very good. But we'll come back to you. Who else want to try? Adya, abhi try karna? Next time? You are just shy, right? You don't know it yet? Okay, so now, okay, you will. So this is first step. So you know what are those 5 senses. Now you can use these senses, and this is for everyone. Please hear attentively. You can use these senses for 2 purposes. One is you use these senses. Purvi, please put the phone down, right? You use the senses. One is for serving Krishna. So that's what Bhagavan is saying here in this verse. Very important. What he's saying, if you want to avoid the stringent rope of Yamraj. Who is Yamraj? Who is Yamraj? He's the Lord of Death. He takes us, if we do sinful activities, his messengers come and they take us to the hellish planets. Right? And in the hell, we go through suffering. Right? If we use our senses properly, if we use these senses, that's what Supreme Lord is saying. They should be engaged in my service. You understand now? But what is Bhagavan saying, Lagan? If you use these senses in my service, then you can avoid the stringent rope of Yamaraj. Understand? Right?
Now, how do we use these senses? That is my next question, or that is what we want to learn today. You have already learned 5 senses. Now, how do we engage these senses in the service of Krishna? How do we engage? How do we engage eyes in the service of Krishna? How? Arjun? How do we engage eyes in the service of Krishna? Adya, you would know that. How do you engage your eyes to serve Krishna? To offer him? To offer him something or to look at him? You engage your eyes in the service of Krishna by looking at him. Or you can use these eyes to look at some material things. Some people go to the movies, some people look at other materialistic things. That's okay. You don't have to stop doing that. But the whole purpose of these senses is to engage them in the service of Krishna. That's what Lord is saying today. What is Lord saying today? In simple terms, yes, Purvis. Yes, Hare Krishna. Yes, what is he saying today? To use the 5 senses upon the Krishna. Children, you are hearing attentively? Yes, Lagan, you say. Mom is saying, like, if we like use these like 5 senses properly, then we won't go to Yamraj. We won't go to the hellish planets. See, you understand now? Kabir, you understood what Lagan said? If you use these senses to serve Krishna, then you will not have to go to the hellish planets. Then you go back to Krishna, or then you stay close to Krishna, and Krishna will stay close with you, or he will protect you from everything bad. Okay? Ryan, you understand that? Right? So now we engage this. Now we'll conclude with what we're saying. These are the 5 senses. How we engage these 5 senses in the service of Krishna? We engage eyes by looking at Krishna. We engage ears to hear about Krishna. Who said those 4 things? One of those 4 things, Adya, was? One of those 4 things to see Krishna was? You first hear about Krishna, right? So you're engaging your ears. So this sense is engaging in hear about Krishna. So eyes, how do you engage your eyes? To look at Krishna. How do you engage your ears? To hear Krishna. Very good, Arjun. Then how do you engage your nose, your smelling? Smelling the flowers offered to Krishna. Now, do you see during the Aarti, one of the person is taking around the flowers for you to smell? Yes, Adya? Because those flowers have been offered to Krishna. So that is the best perfume, right? That is the best thing to smell, right? Who use deodorant here? Does any of you use deo? Children? You use deo? Okay, we'll give you another deo today. Right? So you understand, children? What do you, so nose is engaged in smelling the flowers offered to Krishna, or anything that is offered to Krishna which smells nice. Even the prasadam you can smell. Nicely cooked. Sorry? It smells good. So eyes you engage by? Yeah, eyes you engage by? Come on, looking at Krishna. Ears you engage by? Hearing Krishna. Nose you engage by? Smelling the flowers offered to Krishna. Right? Now what are 2 things left? What about tongue? Taste Taste the prasadam. Right? And touching, oh, that we'll come to that. He's very smart, very good. And so you can eat it. right. There is another thing. So with the tongue you taste the prasadam. Navya, with the tongue we do one more thing. We speak, we chant, we glorify Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. So engage your tongue in chanting the name of Krishna. And yes, Krishna, And talk. we talk about Krishna. So that's 4. And what is the 5th one, Arjun? You already said that. You touch him, right? You touch him. You touch his feet. You touch the things that belong to Krishna. You feel them. You know how you like to feel other things outside? Instead of feeling those things, you touch Krishna. And with the touch, we can also clean the things that belong to Krishna. Yes, Krishna. You do what, JJ? Yeah. Very nice. Very nice. Okay. All right. So today, I think this is enough. What are the 5 knowledge acquiring senses? 5. Come on, speak. Everyone together. All the children together. See and see. Okay. I touch the senses and then you say the names because we were saying different names. Okay. Starting. First. See, smelling, tasting, touching. So these are 5 knowledge acquiring senses. And we can use these senses either to serve Krishna or not to serve Krishna. Serve Krishna. Serve Krishna. And when you use these senses to serve Krishna, what happens? You get free from the rope of Yamraj. Yes? Now you all can go. Give them some prasadam, give them some snacks, Banwari Prabhu, whatever is ready. I think there are some puff pastries. Give them some puff pastries. Go. Have fun. I will ask you next week. Okay, go. Children, you can. Okay, Hari Bol, Prabhuji. Let's start the class now. Please give them something. I think we should give them. Prabhu, they will feel encouraged. इनको बिठा के अच्छे से कुछ इनको खाने को दो. माता जी हैं? हाँ, माता जी, give them some snack, all of them, right? Yes. Okay, हरि बोल. चलिए शुरू करते हैं. पिछली बार का चैप्टर क्या था? हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था? Yes, yes. पुत्र थे आग्नित नहीं महाराज आग्नित का हम जन्म किया था उन्होंने वर्णन उनके पुत्र थे महाराज नागी और फिर ऋषभ देव के बारे में 2-4 शब्द आपने बोले. यस यस. तो हमने पिछली बार 2 चैप्टर कवर किए थे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 5th कैंटो में. चैप्टर 2 में हमने बताया था, या सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अब महाराज प्रियव्रत के वंश की चर्चा हो रही है. महाराज प्रियव्रत कौन है? मनु महाराज के बेटे हैं. तो महाराज प्रियव्रत संन्यास ले लेते हैं और वो वन में चले जाते हैं. तो उनके जो बड़े बेटे थे अग्निधर पितृलोक में जाना चाहते थे. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझने की कोशिश करें. अगर आपको पितृलोक में जाना है तो आप पितरों की उपासना कर सकते हैं. पितृन यान्ति पितृव्रत, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं. और यान्ति देवान देवव्रत, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों के लोक में चले जाते हैं. लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आ जाते हैं. तो अग्निधर का बचपन से ही और उनका शुरू से ही माइंडसेट ये था कि मुझे तो पितृलोक में ही जाना है. और उन्होंने उसी हिसाब से ब्रह्मा जी की उन्होंने आराधना की, और ब्रह्मा जी ने उनके मन को पढ़ लिया कि पितृलोक में आना चाहते हैं. तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक से एक अप्सरा को भेजा जिसका नाम था पूर्व चित्ती आ जाती है. और अग्निधर महाराज तपस्या कर रहे थे, एंड ही स्टार्टेड, उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया, और फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ ही रहो. वो उनके साथ ही रहती है, और उससे उनको 10 बच्चे भी होते हैं. और फिर उसके बाद वो वापस चली जाती है. और कितने सालों तक रही वो उनके साथ? 100 मिलियन ईयर्स. 100 मिलियन ईयर्स. स तेन सहा आयुत परिवत्सर.
10,000 इंटू 10,000 इतने सालों तक वो उनके साथ रही, और उसके बाद वो ब्रह्मा जी के लोक में चली जाती है। जब वो ब्रह्मा जी के लोक में चली जाती है तो अग्निधर महाराज क्योंकि इतना अटैच थे, ठीक है, इसमें दोनों ही साइड की बात है, ऐसा नहीं है कि पुरुष के बारे में कहा जा रहा है, स्त्री के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों जीवात्मा है। तो इसमें आप ज्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करें कि उसको कहा जा रहा है उसको। एंड ऑफ द आखिरकार वो हम सब जीवात्मा है, राइट। हमारी अगर पत्नी में आसक्ति ज्यादा है तो फिर अगले जन्म में कहते हैं वो जो पुरुष है वो स्त्री बन जाएगा, और स्त्री पुरुष बन जाती है, क्योंकि फिर जन्म लेते हैं, फिर साथ साथ का उनका ऐसे चलता रहता है। तो होल पॉइंट इज आसक्ति को कम करना। तो महाराज अग्निधर इतने आसक्त थे, तो पूर्व चित्ती जिस लोक में गई, जब महाराज अग्निधर ने शरीर छोड़ा वो बार बार उसी को मिस कर रहे थे, एंड ही ऑल्सो वेंट बैक टू द सेम लोक। अब अग्निधर के पुत्र हुए नाभि। जो महाराज नाभि थे वो बड़े भक्त थे, और उनके मन में शुरू से कामना थी कि मुझे एक पुत्र हो, पुत्र प्राप्ति की उनकी कामना थी, और उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को एंगेज किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। अच्छा, यज्ञ के लिए मैंने पिछली बार आपको बताया था 7 चीजें होती हैं। तो 7 थिंग्स, व्हाट आर दो 7 थिंग्स? यज्ञ स्थान, यस, यस, राइट, हाँ, 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 यज्ञ सामग्री। सामग्री, यस। तो पहला चीज है द्रव्य, जो सामग्री बताया इन्होंने, सामान बताया। उसके बाद मतलब आप इसको ऐसे समझे, यू कैन मेमोराइज दिस। इसका टेक्निक ऐसा है, सबसे पहले आप यज्ञ करना चाहते हैं, कुछ सामान इकट्ठा करेंगे, या धनराशि चाहिए, द्रव्य। भाई आपको कहीं छुट्टी मनाने जाना हॉलीडे में, सबसे पहले आप बजट देखते हैं कि बैंक में $10,000 है या नहीं, या $5,000 है या नहीं। तो द्रव्य इज द फर्स्ट थिंग, कुछ भी करने से पहले। उसके बाद फिर स्थान, पैसा आ गया, फिर आप देखते हैं स्थान कहाँ पे जाना है, अब यज्ञ कहाँ पे करना है, तो प्रॉपर स्थान चाहिए। अब स्थान आ गया, फिर आप प्लान करते हो, अच्छा मेरे छुट्टी कब है, फिर आप अपना कैलेंडर देखते हो, है ना, टाइमिंग क्या है, अच्छा बच्चों का स्कूल हॉलीडे कब हो रहा है, तो यू वी ट्राई टू अलाइन द टाइम्स। तो पहले द्रव्य, फिर स्थान, फिर काल, ये 3 चीज होगी। अच्छा, फिर आता है कि अब यज्ञ कौन करेगा, उसके लिए आपको ऋत्विज चाहिए, पंडित जी चाहिए, वो हो गया आपका। अच्छा, अब जब यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में मंत्रोच्चारण भी होगा, तो वहां पे मंत्र भी बोले जाएंगे, तो प्रॉपर मंत्र भी आपको चाहिए, क्योंकि हर एक यज्ञ के हिसाब से अलग अलग मंत्र उच्चारण होता है, मंत्र किए जाते हैं। अच्छा, अब ये 5 चीजें हो गई, यज्ञ हो गया। अच्छा, अब ये सब यज्ञ करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब जैसे आप घर में प्रोग्राम कर रहे हो, तो आप पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो, है ना, एक विधि से किया जाता है। और फिर फाइनली अब जब यज्ञ कर दिया, तो पंडित जी को दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो 7th इज द दक्षिणा। तो कोई भी यज्ञ करने के लिए ये 7 चीजें जरूरी होती, तो ये बताया गया। अब तो महाराज नाभि ने यज्ञ का अरेंजमेंट किया, और बहुत सुंदर उनकी व्यवस्था थी, और ऋषियों ने जैसे ही यज्ञ किया, और इतने समय तक यज्ञ का प्रभाव ऐसा रहा कि भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए, और भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए साक्षात। और भगवान विष्णु ने प्रकट, जैसे ही प्रकट होते हैं भगवान विष्णु, तो जितने भी ऋत्विज थे उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, भगवान को उन्होंने ग्लोरीफाई किया, और फिर उन्होंने भगवान से यहां तक कह दिया कि हे भगवान, आप तो सब कुछ दे सकते हो, आप स्वर्ग भी दे सकते हो, अपवर्ग भी दे सकते हो, भगवान आगे हो तो सब कुछ ही दे सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि ये जो राजा है, नाभि राजा, ये सिर्फ एक पुत्र चाहता है। और इसको ऐसा बताया गया है कि आपके पास कोई बोलता है अब सारा खजाना ले लो, और आप उससे क्या मांग रहे हो, मुझे थोड़ा सा घास फूस दे दो। एग्जैक्टली ऐसा ही कंपैरिजन किया गया है। जब भगवान सामने है तो आप क्या मांगोगे, हे भगवान मुझे अपनी सेवा में आप लगाइए, दिस इज द बेस्ट बेनेडिक्शन, मैं आपकी सेवा में हो जाऊं। नहीं तो बाकी सब तुच्छ चीजें मांगने लगते हैं, कई बार भगवान से जाके मांगते हैं ये समस्या सॉल्व हो जाए, ये समस्या सॉल्व हो जाए, पति नहीं सुन रहा है, भगवान इसको ठीक कर दो, घर वाले मेरे साथ फेवरेबल नहीं है, उनको ठीक कर दो, काम पे कोई परेशान कर रहा है, भगवान उसको संभाल दो। पीपल हैव देयर ऑन दिस सॉर्ट ऑफ डिजायर्स। तो वो कोई यही कह रहे थे महात्मा के, लोग मेरे पास मांगने आते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं मांगना क्या है।
वो ये सब मटेरियल डिमांड्स लेके आते हैं। तो ऐसे ऋत्विजों ने भगवान को ग्लोरीफाई किया और उन्होंने कहा कि भगवान हमें मांगना नहीं आता है, और ये राजा ने ये यज्ञ किया, यद्यपि आप स्वर्ग अपवर्ग्योर अपि, आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो राजा है राज ऋषि अपत्य काम प्रजाम भवादृशे, ये एक पुत्र की कामना कर रहा है, आपके जैसा पुत्र चाहता है। तो प्लीज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमने आपको तकलीफ दी, हमने आपको यहाँ बुलाया, आप प्रकट भी हो गए। तो फिर भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। और फिर भगवान, अच्छा उन्होंने एक और चीज कही भगवान के सामने, उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने कहा कि इस राजा ने एक और गलती की। क्या गलती की? इसने जो था भक्तों का संग नहीं किया। अन अन मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस में, राइट। अन उपासित महत् चरण, इन्होंने महात्माओं के चरणों की सेवा नहीं की, इन्होंने उनका शेल्टर नहीं लिया, तो ये इनसे गलती हो गई। तभी कहते हैं कि मांगना नहीं आता कि क्या मांगा जाए, क्योंकि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। आप किसी साधु के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा, आप उनसे प्रश्न करेंगे, देन दे विल गाइड यू, राइट। जैसे हम वो गुरु वंदना करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, हे भगवान आपने ज्ञान के अंजन से मेरा जो पर्दा था वो हटा दिया, और मुझे उससे फिर ज्ञान हो गया, और ज्ञान से मुझे असली ठीक समझ में आया, मेरी पोजीशन समझ में आई। तो वही भाव है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने एक और गलती ये की, लेकिन फिर भगवान बोलते हैं, तो भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मवाद है, जो ब्राह्मणों ने कोई चीज अगर कह दी है, तो मृषा ब्रह्मवादो न मृषा भवितुम अर्हति, ब्राह्मण का वचन जो है उन्होंने एक बार कह दिया तो उनका वचन झूठा नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों? ममैव ही मुखम द्विजदेव कुलम, भगवान कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उनके मुख से मैं ही बोल रहा हूं। देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। तो इसलिए कहा जाता है कई बार अगर कोई ब्राह्मण आपको वर दे देता है तो भगवान को फिर उसे पूरा करना पड़ता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स आप सुनेंगे, नारद जी चले गए और नारद जी ने कुछ बोल दिया, नारद जी ने कुछ दे दिया, तो भगवान को फुलफिल करना पड़ता है, या भगवान के किसी भक्त ने कह दिया तो, है ना। हमारे ऐसा हुआ, अमेरिका में एक हमारे डिवोटी थे और उन्होंने कुछ अपराध किया था, और वो टेंपल में रहने लगे। ये श्रील प्रभुपाद के टाइम की बात है। वो टेंपल में आके रहने लगे और पुलिस उनको ढूंढते ढूंढते वहां पे आ गई। अब पुलिस उनको ढूंढते ढूंढते आ गई तो उनकी खोज चलने लगी, और वो जब पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही थी तो वो प्रभुपाद के पास गए, और प्रभुपाद ने तब उनको कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। बस यही एक एक महात्मा का वाक्य था कि तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब उनको पुलिस पकड़ के ले जाती तो पुलिस ने उनसे पूछा, टेंपल प्रेसिडेंट भी गए और पुलिस ने उनसे पूछा भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारा रूटीन क्या है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि रूटीन हमारा ये, हम सुबह 4 बजे उठते हैं, राइट, फिर हम उठ के मंगला आरती अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद हम जाप करते हैं, फिर उसके बाद हम दर्शन आरती करते हैं फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम यहाँ क्लास होती है, फिर उसके बाद ये प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेके फिर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, फिर स्ट्रीट में हरिनाम करते हैं, फिर हरिनाम करके फिर ये आते हैं, और फिर कई बार 4 बज जाते हैं आने में, 5 बज जाते हैं। उसके बाद शाम को आके फिर से आरती करते हैं, फिर उसके बाद आके ये इनको जो प्रसाद मिलता है वो मिलता है, इनको प्रसाद करते हैं, फिर उसके बाद ये टेम्पल को साफ करते हैं और ये सारा मेंटेन करते हैं, और इनको सोते सोते 9 10 11 बज जाते हैं, और फिर 4 बजे उठ के और फिर ये अपना शावर वगैरह लेते हैं। अच्छा शावर का पूछा उन्होंने, उन्होंने कहा शावर तो यहाँ हमारे यहाँ कोल्ड शावर है क्योंकि गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। वो पुलिस वाला चकरा गया, ये लोग कर क्या रहे। वो बोला इससे बड़ी पनिशमेंट तो हो ही नहीं सकती, ना इनको खाने को नॉन वेज मिल रहा है, ना इनको पीने के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह दिया जा रहा है, ना इनका कोई सोने का टाइम है, इनको कोल्ड शावर दिया जा रहा है, और ये बेचारे बैठ के 2 2 घंटे जाप कर रहे हैं, फिर ये गली में जाके कर, उन्होंने कहा ले जाओ इसको इसको ले जाइए वही ठीक है, यहाँ हम इसको रख के क्या करेंगे तो ये है एक साधु का वाक्य। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मवादो ममैव ही मुखम, मेरा ही मुख से वो बोल रहे हैं, मैंने ही बोला है। तो ऐसा कहा भगवान ने, और भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अगर आपने कहा है मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं ही इनका पुत्र बन के आऊंगा। और तब भगवान ने ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम था मेरु, मेरु देवी।
मेरु की पुत्री से उनका विवाह हुआ था। तो मेरु देवी के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। और तो ये हमारा 3rd चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। अब आज हम करेंगे चैप्टर 4th और चैप्टर 5। एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं एंड देन आई विल स्ट्रेट गेट इनटू दिस। ऑलरेडी समय हो गया है, बट विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोष पुरुषः। भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकं सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं। भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, please bless me. Please pray for me. May the right words are spoken at the right time. May we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, serve Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and all the living entities. Hare Krishna. तो बताते हैं कि अब भगवान ऋषभ देव अपीयर हो गए और सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि क्योंकि बचपन से ही भगवान का जो था, भगवान के लक्षण उनमें दिखने लगे, भगवत लक्षणम। और भगवान के लक्षण उनमें कैसे दिखने लगे? कहते हैं उनका जो शरीर था, उनका जो बॉडी थी, फिजिकली ही वाज सो नाइसली बिल्ट, ही वाज सो हैंडसम। उनके हेयर्स इतने कर्ली थे। फिर जो उनके शरीर पे जो चिन्ह थे, जो भगवान के चिन्ह होते हैं, उनके पैरों में आप देखें, उनके अंकुश का निशान होता है, कमल का निशान होता है, शंख का निशान होता है। तो इस तरीके से उनके बॉडी में वो सारे साइंस थे। और कहते हैं जब भगवान, यहाँ बहुत सारी जगह है, प्रभु आगे आ जाओ, प्रभु जी जो यंग माता जी कम फॉरवर्ड एंड जो नए आते हैं दे कैन सिट बैक और गिव देम चेयर। हरि बोल प्रभु, हरि बोल प्रभु, प्लीज। So already the Supreme Lord was showing those signs. भगवान के वो साइन दिख रहे थे
और कहते हैं भगवान को देख करके जो नगर वाले थे, जो लोकल थे, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ही वाज ऑलरेडी बिकम, उनका जो यश था अभी चारों ओर फैल रहा था, हिज ग्लोरीज वर स्प्रेडिंग अराउंड एवरीवेयर एंड बिकॉज ऑफ दैट कहते हैं इंद्र को जेलसी हो गई। और इसमें वो भगवान इंद्र कह के संबोधित करते, वो कहते हैं भगवान इंद्र स्पर्धमानो, भगवान इंद्र को भगवान ऋषभ देव से स्पर्धा हो गई। He became envious of भगवान इंद्र, भगवान ऋषभ देव, who is described as योगेश्वर। भगवान ऋषभ देव, who is योगेश्वर। योगेश्वर means what? Who is the master of all the mystics। जो मिस्टिक पावर्स होती हैं, जो योग उसको भी कहा जाता है। तो ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द मिस्टिक पावर्स एंड इंद्र गॉट एनवियस अगेंस्ट द सुप्रीम लॉर्ड। तो देखिए इंद्र का पद पा करके भी हमें एनवियस हो जाती है उस लेवल पे जाने के बाद भी। तो हम लोगों की तो सिचुएशन ही क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम बात करना चाहिए, कम से कम दूसरे के बारे में पर्सनल जानकारी लो। डोंट आस्क पर्सनल थिंग्स, डोंट डिस्कस पर्सनल थिंग्स, अनलेस किसी को कोई खास जरूरत है तो बात करो। देयर इज नो नीड टू गो अराउंड। वो हमारे इंडिया में होता है ना कि बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, गली में से घुमाएंगे 2-4 बार, बड़ा सा घर बनाएंगे, फिर लोगों को दिखाएंगे, तो अल्टीमेटली सब एनवियस हो जाते हैं। ऊपर से सब बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चढ़दी कला है ना, हमारे पंजाब में कहते हैं चढ़दी कला, और ऊपर चढ़ो। लेकिन वो कह रहे हैं और ऊपर चढ़ो, पर देख रहे हैं गिरेगा कब, है ना। तो these things should not be discussed। जब इंद्र को एनवी हो जाती है तो what about us human beings? It is natural। So there is no need to be concerned, no need to feel discouraged, because this is natural। This is the nature of human being, and the only reason we are here is because we became envious of the supreme personality of Godhead। कहते हमें भगवान से envious थी, that is why we got this human birth। So Indra got envious of, and here the word uses Yogeshwara। So because Indra is responsible for the rains, so Indra stopped raining in the region which belonged to, or where Bhagwan Rishabdev was living, and that place was called Ajnabh Kshetra, Ajnabh Varsh। Aj means who is unborn, and Nabh means is come from the Nabhi, Maharaj Nabhi, his father's name। So Ajnabh Varsh, so Indra made sure the rain goes everywhere but except the kingdom which belonged to Bhagwan Rishabdev। But Bhagwan Rishabdev understood his ways, and then Bhagwan Rishabdev himself arranged the rain in his own area। उन्होंने ऐसा क्योंकि इसलिए कहा he is the Yogeshwar। And when Indra heard that, and when Indra saw that he is trying to stop the rain, लेकिन उसी एरिया में रेन हो रही है, तब उसको रियलाइज हो गया कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अब उसके बाद कहते हैं कि ऐसे भगवान ऋषभ देव और उनके फादर थे महाराज नाभि। तो महाराज नाभि जो थे अपने थे भगवान ऋषभ देव, पर उनको बेटे की तरह मानते थे, है ना। जैसे वत्स के तरह से उनको वत्स कह के बुलाते थे, उनको पुत्र कह के बुलाते थे, हालांकि वो थे भगवान। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं योग माया ने उनको कवर कर लिया था। माया विलसित मतिर वत्स, योग माया ने उनकी जो बुद्धि थी उसको पुत्र विलास, पुत्र प्रेम में वो प्रभावित कर दिया था। इवन दो ही वाज लॉर्ड, बट ही वुड एड्रेस हिम एज, ओ मेरे बेटे इधर आ जाओ, माय डियर सन कम हियर, माय डियर सन स्पीक दिस, डू दिस। सो लाइक दिस Maharaj Nabhi was enjoying that pastime। But then after some time Maharaj Nabhi realized that it is time for him to go back as well। And when he saw कि सारे लोग भगवान ऋषभ देव को, he was a prince, they were glorifying him so much, all the ministers were glorifying him, everybody was impressed from him, then Maharaj Nabhi decided that I should make Rishabh Dev as the crown prince, or maybe hand over the kingdom to him। And then Maharaj Nabhi decided to hand over the kingdom to Bhagwan Rishabh Dev, and he himself went to the forest, right। तो कहते हैं वो कैसे गए, प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन प्रसन्न, he was very happy, right। So happily he decided to leave the home। And another important point I told you earlier also, when Maharaj Priyavrta left home, his son wasn't married। Maharaj Agnidhar wasn't married।
when Priyavrt's father left home, Priyavrt Maharaj wasn't married. Manu Maharaj's son. Rather, he forcibly gave kingdom to his son. And then Priyavrt Maharaj got married. He had children also. Right? So everything was taken care by Krishna. Similarly, Maharaj Agnidhar, he was so much attached to his wife, he went back, but his son wasn't married. But in due course of time, Maharaj Navi also got married. He got married to Meru Devi, the daughter of Meru. He also got married. And now same situation. Maharaj Navi is now so happy and pleased. He is not worried about कि अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है. He hasn't been settled. When he heard, जब उन्होंने सुना कि सारे लोग, नगर के लोग, all the ministers, everybody is happy with Maharaj Rishabh, with Bhagwan Rishabh Dev or with Prince Rishabh Dev at that time, he felt it is time for me to live. So very important word is prasanna. So he was very happy, right? Nipunena, very expertly. And tapsa, he performed austerity, right? And samadhi yogena, उन्होंने समाधि लगाया. Samadhi मतलब when your intelligence is fixed. There is no deviation. Samadhi, samandhi, your intelligence is equipoised. So he was equipoised, he was performing austerity. Where he was performing the austerity? Nar Narayan Akhyam. He went to Badrikashram. आप लोग में से बद्रीनाथ जो भी जब अब तो खैर वहां वॉर शुरू हो गई है, लेकिन जब भी आप इंडिया जाएं, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करता हूं, एक ऐसा प्लान बनाएं, बच्चों को हॉलीडे जगह पे भी ले जाएं और उनको एक तीर्थ के जगह पर भी ले जाएं, सो ताकि उनका बैलेंस हो जाए. तो नहीं तो आगे ये सब जगह लुप्त हो जाएंगी. एंड दे माइट नॉट बी एबल टू गो देयर. व्हेनेवर यू गो टू इंडिया, एक बार बद्रीनाथ ले जाएं और एक बार उनको बॉम्बे ले जाओ. दोनों जगह उनको दिखा दो. अगली बार उनको रामेश्वरम जी ले जाओ, फिर उनको कहीं और ले जाओ. तो ऐसे हॉलीडे स्पॉट और आप ये कवर करें सो दैट दे डू. तो कहते हैं जो हमारे 4 धाम है, कौन से हमारे 4 धाम? बद्रीनाथ, क्या कह रहे हैं आप? बताइए आप. केदारनाथ जी और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री. हाँ, ये हमारे 4 धाम कहे जाते हैं, लेकिन जो रियल में 4 धाम है वो कौन से हैं तुषार प्रभु? बद्रीनाथ जी, जगन्नाथपुरी, द्वारका जी, रामेश्वरम. तो ये 4 धाम हैं हमारे यहाँ नॉर्थ में. ये नॉर्थ के 4 धाम आप मान लीजिए, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी. लेकिन बद्रीनाथ सतयुग के हैं, क्योंकि वहां पे भगवान ने आके नर नारायण भगवान ने वहां पे तपस्या की है. ठीक है, तो सतयुग का वहां पे बताया जाता है. फिर दूसरा कौन सा बताया जाता है हमारा? सतयुग के बाद कौन सा आया? त्रेता युग. तो त्रेता युग में रामेश्वरम जी, भगवान राम ने रामेश्वरम जी की स्थापना की. और फिर त्रेता के बाद कौन सा आता है? द्वापर. द्वापर का कौन सा तीर्थ स्थान है? द्वारका जी, वहां पे भगवान कृष्ण थे. और कलयुग फिर चौथा है. कलयुग का कौन सा है? जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ. तो एक एक करके बच्चों को आप ये 4 धाम घुमा लाएं, तो बहुत अच्छा होगा. इनको आगे जीवन में बहुत हेल्प मिलेगी. तो उसी भाव से कहते हैं भगवान महाराज नाभि जो थे, ही वेंट टू बद्रिकाश्रम और नर नारायण आख्यम, जिनको नर नारायण का धाम भी कहा जाता है. लेकिन वहां क्या कह रहे हैं? वहां पे उन्होंने क्या देखा? वासुदेव भगवंतम, जो भगवान वासुदेव है. वासुदेव कौन है? भगवान कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव. तो ही फोकस हिज इंटेलिजेंस, ही फोकस ऑल हिज अटेंशन ऑन भगवान कृष्ण, राइट? वसुदेवम भगवंतम, राइट? और वहां पे उन्होंने उनकी उपासना की, राइट? उपासना कालेन, थोड़े ही समय के बाद, तन महा, कुछ जो समय के बाद उन्होंने जो भगवान की जो महिमा थी, तन महिमानम अवाप, और उन्होंने फिर भगवत धाम को प्राप्त कर लिया. तो क्या किया महाराज नाभि ने? ऋषभ देव जी को राज्य सौंप दिया, खुद तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम में चले गए और नर नारायण भगवान की उन्होंने आराधना की, हु इज नन अदर देन भगवान कृष्ण है. और उनका ध्यान किया, उनकी उपासना की. उपासना करके कुछ समय के बाद वो भगवत धाम को चले जाते हैं. तो महाराज नाभि भगवान धाम को चले गए. उसके बाद भगवान ऋषभ देव के बारे में अब थोड़ा सा बताते हैं कि भगवान ऋषभ देव ने अब इस जो अजनाब क्षेत्र था, he considered it as his कर्म क्षेत्र.
वो हालांकि भगवान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अपना कर्म क्षेत्र मान लिया, राइट। और भगवान ने उसको अपना कर्म क्षेत्र मान करके, कहते हैं फिर वहां पे भगवान ने सब लोगों को वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, राइट। सो द पॉइंट हियर इज वी आर ऑल सिचुएटेड। अच्छा, 4 वर्ण कौन से हैं और 4 आश्रम कौन से हैं? बताइए, कोई बताएगा 4 वर्ण कौन से हैं और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र। 4 वर्ण हो गए। ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, राइट। सो एज पर आवर qualities, we all have different qualities, right? You know, initially I spoke that Priyavrat Maharaj went back to Krishna, लेकिन उनका बेटे जो अग्निधर थे वो बचपन से ही क्या चाहते थे? वो पितृलोक में जाना चाहते थे। तो he had certain qualities, लेकिन उनके जो पुत्र हुए फिर महाराज नाभि, उन्होंने अभी आप मैंने बताया वो कहाँ चले गए? उन्होंने भगवान नर नारायण की तपस्या की, he went back to, वो भगवान गोलोक के धाम चले गए। तो we are all born with certain qualities. Based on those qualities, based on that nature, हम लोग we fit into one of the वर्ण। वर्ण के कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट। हालांकि कलयुग में कहा जाता है कि हम सब शूद्र ही हैं। जन्मना जायते शूद्र, राइट। जन्म से ही शूद्र है, क्यों? क्योंकि हमारा गर्भदान संस्कार नहीं हुआ। वी आर नॉट बोर्न थ्रू गर्भदान संस्कार, राइट। some of us are fortunate, माता पिता को ज्ञान था, उनको पता था कि भी गर्भदान संस्कार करना है, राइट। some of them अभी ये सब नॉलेज किसी को पता ही नहीं है, right? So we are born शूद्रस, जन्मना जायते शूद्र। लेकिन उसके बाद स्कोप है, उसके बाद हम लोग जब गुरु आश्रय लेते हैं, वह जब हमें गुरु दीक्षा देते हैं, तो तब फिर हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण दीक्षित हो जाते हैं। कईयों को ब्राह्मण हरिनाम दीक्षा एक होती है पहले, एंड देन सेकंड इज द ब्राह्मण दीक्षित, राइट। तो जन्मना जायते शूद्र, राइट। और दूसरा फिर हम लोग दीक्षा लेकर के हम लोग द्विज बन जाते हैं, उसको कहते हैं द्विज, मतलब सेकंड बर्थ। सेकंड बर्थ क्यों हो गया? पहले वी वर बोर्न शूद्र, कोई संस्कार नहीं था, बट थ्रू दिस प्रोसेस वी गेट अनदर बर्थ। सो इन दैट सेंस वी ऑल नीड अनदर बर्थ, राइट। वी ऑल नीड अनदर बर्थ। जब संस्कार किया जाता है तो संस्कार से हम लोग द्विज, सेकंड बर्थ जो हमारा हो जाता है। फिर तीसरा उन्होंने बताया वेद पाठात भवेद विप्र, और फिर जब हम वेदों को पढ़ते हैं तब हम विप्र बनते हैं, राइट, जिसको ज्ञान कहा जाता है। एंड ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जो ब्रह्म, जो भगवान के बारे में जान लेता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं समाज में ब्राह्मण है, लेकिन क्या वो ब्राह्मण के कर्म है उनके? नहीं है। सो इफ यू आर नॉट ब्राह्मणी, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज एज पर द स्क्रिप्चर्स, then we are as good as a Shudra, right? So going back to that point, we all have certain qualities. Based on those qualities, we perform certain actions. तो हमारे वर्ण हो गए। और आश्रम, जब वन नॉर्मली कलयुग में 100 years का एज होता है, 1 to 25 इज ब्रह्मचर्य, राइट। ब्रह्मचर्य मतलब no association, we go and live away from the home, we are studying, but these days that is not possible. But we can create a pseudo brahmacharya environment in our surroundings at our homes. Like children today, they sat together, right? If they start learning these things, so you are creating that environment for them. So 1 to 25 is brahmacharya, then 26 to 50 is grahastha ashram, right? And so that's what here he was saying. Now Bhagwan Rishabdev, he taught the grahastha ashram. Now, because Indra became envy of him, but Indra soon realized that he is none other than the Supreme Personality of Godhead. So Indra offered his own daughter. इंद्र की पुत्री का नाम था जयंती। इंद्र अपनी पुत्री जयंती को लेके आते हैं और भगवान ऋषभदेव को पत्नी के रूप में उनको ऑफर करते हैं। तो भगवान ऋषभदेव फिर जयंती से शादी कर लेते हैं। भगवान ऋषभदेव जयंती से शादी कर लेते हैं, जयंती माता जयंती से उनका विवाह हो जाता है। एंड देन ही हैज 100 sons, 100 उनके पुत्र होते हैं। और जो बड़ा पुत्र है उसका नाम होता है भरत, राइट। सो फर्स्ट 10 sons, जो 10 बड़े पुत्र हैं उनके, वो उनके अंदर, अब आप इस पे भी ध्यान दें,
वो सब क्षत्रिय बन जाते हैं। महाराज ऋषभदेव इज, अभी उनका कौन सा वर्ण है बताइए? अभी ग्रस्त है ना, ग्रस्त आश्रम में। उनका कौन सा वर्ण है? कोई और बताएं प्रभु जी। क्षत्रिय बोल। क्षत्रिय। कोई और बताएं। क्षत्रिय, राइट? इज ही राइट? ही क्षत्रिय, ही इज बोर्न इनटू अ क्षत्रिय फैमिली में हुए तो वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। अब उनके पुत्र जो हुए वो भी क्या हुए? दे आर बोर्न क्षत्रिय। लेकिन अब इसमें क्या चेंज आता है? 100 में से जो 10 सन्स हैं, बड़े 10 पुत्र हैं, वो तो क्षत्रिय ही रह गए। उसके बाद जो 9 पुत्र हुए वो बहुत बड़े महाभागवत बन गए, नवयोगेंद्र जिनको कहा जाता है। दे वर इंटरेस्टेड, और फ्रॉम चाइल्डहुड उनका इंक्लिनेशन था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूं। जैसे महाराज अग्निधर बचपन से पितृलोक में जाना चाहते थे, इन 9 पुत्रों को ये भाव था कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। सो दे आर कॉल्ड नवयोगेंद्र। एंड देन द रिमेनिंग कितने बचे? 81। रिमेनिंग 81 they wanted to perform brahmanical activities. They became top class brahmanas. जैसे यज्ञ करना है, पूजा करना है, डीटी वर्शिप करनी है, तो वो उनका वो था। लेकिन ये नव योगेंद्र, they were महाभागवत। That means they were not staying at one place. They could travel by the air. Right? They had risen themselves to a level where their devotion service to the God was so powerful and so strong. So they were different. तो अब समझने की बात क्या है? ये कहां पैदा हुए? क्षत्रिय के पैदा हुए। एंड दे वर ऑल क्षत्रिय, बॉर्न क्षत्रिय, बट क्या बन गए? 10 क्षत्रिय रह गए, 9 81 ब्राह्मण बन गए, और 9 महाभागवत हो गए, विच इज इवन अबव द, अब ये वो 4 वर्ण से ऊपर हो गए, राइट। तो कहने मतलब ये कि वी ऑल कैरी सर्टेन क्वालिटीज। तो ऐसे भगवान ऋषभदेव, ही हैड 100 सन्स फ्रॉम हिज वाइफ जयंती। अब भगवान ऋषभदेव जब अपने राज्य में शासन कैसा कर रहे थे, अब उनका शासन बताते हैं। सो ही वाज टीचिंग हिज सिटीजन्स कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना। थ्रू हिज ऑन एक्शंस ही वाज टीचिंग देम, राइट। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को एस्टेब्लिश किया। तो अगेन, कोई जो शूद्र है उसको आप इंफीरियर ना समझें, कोई वैश्य उसको इंफीरियर ना समझें। वो काम शूद्र का कर रहा है, लेकिन वो भक्ति अगर भगवान की कर रहा है तो ही इज अ टॉप वैष्णव। आप समझ रहे हैं? अगर वो काम भगवान विष्णु की अगर वो भक्ति कर रहा है तो ही इज अ वैष्णव, ही इज नॉट अ शूद्र, है ना। हमारे एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में एक्चुअली एक रेफरेंस आता है, उसमें वो यही कहते हैं कि अगर कोई बहुत षट कर्म निपुणों, ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं, यजन, याजन, पठन पाठन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, राइट। पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, दान देना, दान ग्रहण करना। षट कर्म निपुणों विप्रो, अगर कोई ब्राह्मण ये 6 कर्म में निपुण है। मंत्र तंत्र विशारद, सारे मंत्र उसको पता है, सारे तंत्र उसको पता है, लेकिन अवैष्णवो गुरु न स्यात्। लेकिन अगर वो अवैष्णव है, भगवान विष्णु की उपासना नहीं कर रहा है, तो वो गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन वही कहते हैं कि अगर स्वपच, स्वपच मतलब if somebody who is a dog eater, right? लेकिन वो वैष्णव है, right? स्वपचो वैष्णव, स्वपचो वैष्णव गुरु, राइट। अगर वो डॉग ईटर है और वो विष्णु भगवान की उपासना कर रहा है तो वो गुरु बन सकता है। तो मैं यहाँ ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो हमारा कास्ट सिस्टम है, वर्णाश्रम को, उससे आप कंफ्यूज ना करें। वो वर्ण इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि समाज में व्यवस्था चलानी है। कोई तो ट्रेन चलाएगा ना। अब सभी लोग ट्रेन में फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाएं कि भी ट्रेन चलाएगा कौन? कोई तो ड्राइवर बनेगा ना। तो सिमिलरली कोई तो सफाई करेगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई पैसा कमाएगा, कोई सब्जी उगाएगा, कोई सब्जी लाके बेचेगा, कोई सब्जी खरीद के भगवान के लिए भोग बनाएगा, और कोई भगवान को भोग ऑफर करेगा। जो ऑफर करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो बनाएगा वो भक्त होगा, जो उगाएगा वो वैश्य होगा, राइट। भगवान कृष्ण जैसे आप कहते हैं वो वैश्य थे, इवन दो ही वाज बोर्न टू वसुदेव, वो तो क्षत्रिय हुए वहां पर, बट बिकॉज वो नंद महाराज के यहाँ रहते थे तो ही वाज अ वैश्य। नंद महाराज का काम क्या था? गाय का दूध निकालना, उसको बेचना, तो ही बिकेम अ वैश्य।
right? लेकिन वो हम सिर्फ रोजगार चलाने के लिए करते हैं, दैट इज ओनली टू टेक केयर ऑफ योर बॉडीली नीड्स, बट अल्टीमेटली आपका कर्म कैसा है, इज इट कनेक्टेड विद कृष्णा? अभी बच्चों ने बताया जो 5 सेंसेस हैं, इस श्लोक में भगवान वो ये भी कहा है 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड 5 वर्किंग सेंसेस। वर्किंग सेंसेस कौन सी है 5 हमारी, बताए कोई? 2 arms, ना बताए ब्रो। 2 arms, 2 legs. हाँ, नहीं, आर्म हो गई हमारी, एक एक हाथ हो गए, पैर हो गए, हाँ, और क्या हो गया हमारा? For the tongue. टंग हो गई हमारी, बिकॉज हम दैट इज ऑल्सो वर्किंग सेंसेस, एंड देन इवैक्यूएशन एंड रीजनरेशन। तो 5 वर्किंग सेंसेस हैं। तो इन सेंसेस को अगर आप इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, as long as you are engaging your knowledge acquiring senses and your 5 working senses to serve Krishna, then you are a Vaishnava. आप काम भले ही शुद्र का कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं टू मेंटेन योर बॉडी, तो उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान ऋषभ देव के बारे में बताते हैं। भगवान ऋषभ देव, ही वॉज टीचिंग हिज सिटीजन्स, वर्णाश्रम धर्म उनको बता रहे थे, एंड इवन दो ही न्यू ऑल द वेदास, but still he was taking instructions from brahmanas, right? ब्राह्मणों के आदेश के हिसाब से, as the brahmanas would instruct him, right? उस हिसाब से वो काम करते थे। So the process is क्षत्रिय ruler will take instruction from brahman, and then he will get vaishya and shudra to implement and execute those instructions. So that is the arrangement of the whole you can say running the affair of the city. But then in the last they say there is one important thing. One important thing वो कह रहे हैं, न कश्चन पुरुषो, this is a very important point, न कश्चन पुरुषो वांछति अविद्या, कोई भी पुरुष, कोई भी रेजिडेंट उनकी जो सिटी में कुछ भी ऐसा नहीं चाहता था। कैसा नहीं चाहता था? उसमें ये कह रहे हैं कि he or she won't look at other person's things. वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इनके पास है तो मेरे पास भी आ जाए, और उसको कंपेयर किया है, दिस इज कंपेयर टू एज गुड एज ग्रोइंग ए फ्लावर इन द एयर। ख पुष्प, राइट? आकाशाय पुष्प, आकाश में पुष्प को लगाना। क्या आकाश में, कैन ए फ्लावर ग्रो इन द एयर? Can you plant a flower in the air? So this is what is compared, or this is an analogy given when we are looking at someone else's possessions and we think कि ये शायद मेरे पास भी आ जाए, इसका पोजेशन मुझको मिल जाए। This is as good as growing a flower in the sky, क्योंकि देने वाले तो भगवान है, right? देने वाले तो भगवान है। Only you get something only when he sanctions. So in his kingdom, the most important thing is, this is where the rulers come. Nobody will ask or even think, right? वांछति, कोई नहीं चाहता था कि दूसरे के पास क्या है ऐसा मेरा पास हो जाए। Rather than what they were asking for, तो कहते हैं they were asking for भर्तरी, जो उनके राजा थे, और जो भर्ता है, जो भगवान है, उनके प्रति उनका स्नेह, राइट? स्नेह अतिशयम, बहुत ही उनका गाढ़ा स्नेह हो जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग स्नेह हो जाए। दे वांट अ स्ट्रॉन्ग लव टू डेवलप अंतरेण विद इन देयर हार्ट्स। सो ऑल द सिटीजन्स, they were not looking at someone else's possessions, which is compared to growing flowers in the air. Rather, all the citizens क्या चाहते थे? अपने भगवान के प्रति उनके जो हृदय में प्रेम है वो हमेशा बढ़े, अंतरेण, राइट? अतिशयम, very strong love for the Supreme Lord. So they were all clear as to what they're going to get or what is their desire in their life. So this is how Bhagwan Rishabdev was ruling. So these are the characteristics of Bhagwan Rishabdev. So we'll stop here now. So this is chapter number 4. In the next chapter, we will speak about how Bhagwan Rishabdev is going to instruct his sons. Now, towards the end of this chapter, Shukdev Goswami says, one day Bhagwan Rishabdev went out with all of his sons, and there was a great assembly of Brahmanas, and all the learned peoples were sitting there. So they requested Bhagwan Rishabdev to take the seat, higher seat, and Bhagwan Rishabdev instructed his sons. And indirectly, the way it is understood is, through instructing his sons, he is instructing all of us.
So next session, we will look at the instructions of Bhagavan Rishabdev. So we'll stop here now. Okay. Any questions, any comments? Yes. Yes, yes, yes. So I'll talk about it in more detail, but when Bhagwan Rishabdev left, जब भगवान ऋषभदेव छोड़ के जाते हैं, किंगडम छोड़ देते हैं, because he also hand over to his sons, और जब वो जाते हैं तो भगवान ऋषभदेव ने he became दिगंबर, उन्होंने सब कपड़े वपड़े सब पहनना छोड़ दिया. He was walking, और लोग उनको, कुछ लोग उन पे थूक देते थे, पत्थर मारते थे, उनको गलत बोलते थे, right? They would even urinate at him, right? But Bhagwan Rishabdev, he was not, he became indifferent to everything, right? But because he was Digambar, he was not wearing, clothes, right? Some people say, I mean, there is no confirmed reference, Prabhuji, but yes, I've heard that the Jainis, people who follow Jain Dharma, they say that, that Bhagwan Rishabdev is their, that through his teachings, they have picked up this process. Anyway, but I haven't seen a confirmed reference. But look, the whole point is, आपको किसी ना किसी तरीके से भगवान के धाम जाना है, भगवान का भजन करना है, कोई भी रास्ता पकड़ के, as long as it is taking you to Krishna. और जैसा मैंने कहा कि हम सब, we are all born with certain qualities. पिता भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, पुत्र ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है, और उनका पुत्र फिर विष्णु भगवान की आराधना कर रहा है. Okay, Prabhu. All right. Okay, Mataji, we will stop now, and thank you for your patience. Thank you, Prabhuji.